Good morning, champions. So, hope all of you have done your homework. And children, in this class, we will continue with the same chapter, that is change in profit sharing ratio, and we will do question number 9, right? So, take out your notebooks and books. So, first I will read the question. Now, pay attention, everyone. Question number 9, page number 4.40. A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:1. They decided that with effect from 1st April 2019, they would share profits in the ratio of 3:2. Means old ratio is 2:1 and new ratio is 3:2. But this decision was taken after the profit for the year ended 31st March 2020 of 90,000 was distributed in old ratio. Means हुआ क्या इस क्वेश्चन के अंदर, जो आपका रेशो चेंज हुई है उससे पहले ही इन्होंने क्या किया, जो प्रॉफिट था 90,000 का उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशो में. दैट मीन्स वी हैव टू पास rectifying entry in this question, right? We have to show the adjustment table, then we will pass the rectifying entry, adjustment entry. Next line, firm's goodwill was valued at on the basis of aggregate of 2 years profit. Aggregate means total of 2 years profit, not average. See, aggregate means total of 2 years profit preceding the date decision became effective. Profit for the years ended 31st March 2018 and 19 were 60,000 and 75,000 respectively. Means total profit is 1,35,000. 60,000 plus 75,000. It was decided that goodwill account will not be opened in the books of the firm. Means we have to pass the adjustment entry again for goodwill also, that is gain into sacrificing partners capital account, and necessary adjustment to be made through capital accounts, which on 31st March 2020 stood at 1,50,000 for A and 90,000 for B. So capital balances are also given in this question. Now question is pass necessary journal entries and prepare partners capital account. So first what we have to do, we have to pass the rectifying entry for profit, then we have to pass the adjustment entry for goodwill, then we have to show the partners capital account. I hope the question is clear, right? So now let's solve this question. Question number 9. First we will do adjustment table, right? So two partners are there, A and B, so we need 3 columns, 1 and 2 and 3. So A, B. I hope you all remember how we used to pass the adjustment entry, right? Rectification entry. So now 2:1 is the old ratio and 3:2 is the new ratio. So first we will write correct amount. Correct amount means 90,000. New ratio is 3:2. So 90,000 into 3 divided by 5. This comes to 54,000. So correct amount 54,000 and 90,000 for B into 2 by 5. This comes to 36,000. So this is correct amount, right? Now wrongly distributed amount, wrongly distributed. कितना हुआ total? Total comes to 90,000. So wrongly distributed, I will write here for your reference, 90,000. So wrongly distributed 90,000 in which ratio? Old ratio is 2:1. In 2:1. Now we will divide 90,000 into 2 by 3. This comes to 60,000. 60,000 and 30,000. Right? Now we will balance both the sides. This will come 60,000, 54,000, 6,000. Difference is 6,000. Right? Again difference is 6,000. अब देखो यहाँ पे correct amount for A was 54,000, but
ही इज गेटिंग 60,000, राइट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस 6,000 हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए से लेंगे। बी का करेक्ट अमाउंट was 36,000, but after the mistake he is getting 30,000, means उसको हमें 6,000 और देना पड़ेगा, right? So now our rectifying entry, or you can call adjustment entry, will be A's capital account debit to B's capital account 6,000. Amount is 6,000, right? So adjustment entry for profit past, right? We will write the narration. So A's capital account to B's capital account. Now listen carefully. हुआ क्या था? Ratio जो थी, old ratio was 2:1 and new ratio is 3:2. 3:2. This is old ratio, and this is new ratio, right? तो हुआ क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, क्या मिस्टेक हुई है? जो प्रॉफिट था 90,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था आफ्टर द चेंज इन द रेशियो, दैट इज 3:2, बट गलती से उसको क्या किया, 2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करेक्ट। अब हमें यहाँ पे क्या किया, हमने इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए थ्रू एडजस्टमेंट टेबल। करेक्ट अमाउंट इज गिवन एज 54,000, कैसे आया, 90,000 इंटू 3/5, सेम वे 90,000 इंटू 2/5, तो आपका आ गया 54,000 and 36,000 फॉर बी। wrongly distributed 90,000 in 2:1, that is old ratio. This comes to 60,000 and 30,000, correct? Now we will balance 54,000 minus 60,000, this comes to 6,000, 36,000 minus 30,000, this comes to 6,000. Now 54,000 is the right amount, but he is getting 60,000 rupees. तो हमने यहाँ क्या किया, A से 6,000 ले लिया, right? और यहाँ पे क्या हुआ, 36,000 was the correct amount, but B is getting 30,000 because of the mistake, so he will be getting 6,000 more, right? So adjustment entry will be A's capital account to B's capital account. Adjustment entry for profit past. I hope this part is clear. You can pause the video and note this down, right? Now second part of the question, we have to pass the adjustment entry for goodwill, right? So first what we will do, I hope you remember the format. Old partners, old ratio. Partners are A and B. New partners means against A and B only. New ratio, right? Now old partner, old ratio, A and B. Old ratio is 2:1. So ratio is 2:1 and new ratio is 3:2. In the question they have written that goodwill was valued on the basis of aggregate of 2 years profit. 2 years profit means 60,000 plus 75,000. So goodwill is equal to 60,000 plus 75,000, that comes to 1,35,000, right? So this is the amount of the goodwill. Now what we have to do, we have to distribute 1,35,000 in the ratio of 2:1. So into 2 divided by 3, this comes to 90,000, right? 90,000 and balance is 45,000. Now then 1,35,000 into new ratio 3 divided by 5. 1,35,000 into 3 divided by 5. This comes to 81,000. 81,000 and balance is 54,000. Right? Now we'll balance both the side, 9,000 and 9,000. Now see, old ratio, as per the old ratio, A को कितना मिलना चाहिए था, कितना उसको क्रेडिट होना चाहिए था, उसको क्रेडिट होना चाहिए था 90,000, क्योंकि उसने जो मेहनत करी, जो एफर्ट्स डाले हैं, उसने 2 पार्ट्स में डाले हैं, राइट? 2 पार्ट्स में A ने एफर्ट्स डाले हैं गुडविल के लिए, जब रेशियो चेंज हो
रही है उससे पहले की बात कर रहे हैं, राइट। और बी ने कितना एफर्ट डाला है, 1 पार्ट का। तो जब रेशो चेंज होगी तो उनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो सॉरी जो गुडविल जो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी वो होगी 3:2 की रेशो में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू रेशो में देखेंगे, उसका बनता है 81,000 रुपीज, राइट। मीन्स 9,000 जो है उसको कम मिल रहा है, तो हम उसको 9,000 और दे देंगे, राइट। सेम वे फॉर बी सी 45,000 रुपीज उसको मिलना चाहिए, बट उसको मिलेगा कितना फ्यूचर में, उसको मिलेगा 54,000 रुपीज। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बी से लेकर ए को दे देंगे, मीन्स बी इज कॉम्पनसेटिंग ए, राइट। सो बी इज कॉम्पनसेटिंग ए, सो आवर एंट्री विल बी, जर्नल एंट्री विल बी जर्नल entry B's capital account debit to A's capital account. Amount is 9,000 rupees. So being adjustment entry passed. Adjustment on goodwill passed on change in profit sharing ratio. I hope this is clear. एक बार देख लो, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी एंड आई एम कमिंग टू चेक योर नोटबुक्स, ओके, कि तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यस आकाश, शो मी योर नोटबुक, कितना क्वेश्चन किया तुमने? Good job, Akash. Now, Rohit, you also show me your notebook. Okay, first I will complete this part, then I will see your notebook, right? So now, children, we will calculate sacrificing ratio also in this question, right? So, old ratio is given, new ratio is given in the question. Now, let's calculate the sacrificing ratio. Sacrificing ratio, I am rubbing this part, goodwill account, you can start calculating sacrificing ratio. Now sacrificing ratio, right? Old ratio minus new ratio. So old ratio minus new ratio. So A sacrifice will be A is equal to 2/3 minus 3/5. Denominator सेव कर लेते हैं 15, 3 5 5 2 10, 5 3 3 9. So this comes to 1/15, right? B 1/3 minus 2/5, right? 15. So 3 5 5, 5 3 3 2 6. तो यहाँ पे आ गया माइनस में आ गया 1/15. मीन्स माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट चलता है. सो माइनस मीन्स बी इज गेनिंग, राइट. तो हमने क्या किया, यहाँ पे बी को डेबिट कर दिया और हमने क्या किया, ए को क्रेडिट कर दिया. अगर आप 1,35,000 को आप डायरेक्ट अगर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 15 करते हो तो आपका देखो आंसर वही आएगा, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 15. अगेन आपका आंसर 9,000 ही आएगा. तो आप चाहे इस मेथड से करो और ऐसे करो, चाहे आप डायरेक्ट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, न्यू पार्टनर न्यू रेशियो करो. योर आंसर विल बी सेम इन बोथ द केसेस, राइट. आई होप this is clear. Now last part of the question, that is partners capital account. So first you can note this down so that I can rub the board, then we will continue further, right. Yes Rohit, what you were saying? Okay, show me your notebook Rohit, I want to see your notebook. Yes Rohit, I am happy for you, you are putting lots of efforts in accountancy, but in business studies also I want to see your efforts, right. So children, last part of the question, partners capital account. Partners capital account, right. So we will have columns, particulars A, B, particulars A and B,
brought down the balance given in the question. That is, balance is given as 1,50,000 for A. So by balance brought down, A is 1,50,000 and B is 90,000. Right? Now what we have to do? 9,000 C. B is capital to A is capital means हमें A को क्रेडिट करना है और B से लेना है. तो हम क्या करेंगे? A को दे देंगे 9,000 रुपीज. किसने दिए? बाय B's कैपिटल अकाउंट. राइट? और क्या करना है हमें? अब हमने जब A को दिया है तो B के अकाउंट से हमें डेबिट भी करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा. सो वी विल राइट किसकी वजह से B का अकाउंट माइनस हो रहा है? A की वजह से. सो टू A's कैपिटल अकाउंट. हमने क्या किया? ये इतना तो याद है ना कि डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है. जब पार्टनर्स का बैलेंस इंक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, और जब हम पार्टनर से लेते हैं और उनका बैलेंस डिक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं. राइट? तो हमने यहाँ पे क्या किया? A को 9,000, जो ये 9,000 है, हमने A को क्रेडिट कर दिया और B से हमने वो 9,000 उससे ले लिया, उसको डेबिट कर दिया. राइट? अब कौन सी एंट्री रह गई है? आई कैन सी अभी हमारी प्रॉफिट वाली एंट्री जो है वो रह गई है. राइट? अब इसमें क्या है? हमें B को क्रेडिट करना है. राइट? B को क्रेडिट करना है. कौन कर रहा है क्रेडिट? A उसको दे रहा है. A कॉम्पनसेट कर रहा है. राइट? सो बाय कॉम्पनसेट नहीं कर रहा. A जो है उसको गलती से ज्यादा मिल गया था तो A से हम लेके B को दे रहे हैं. राइट? कॉम्पनसेशन जो है वो यहाँ पे हुआ है गुडविल के केस में. फॉर योर रेफरेंस आई एम राइटिंग गुडविल हियर. राइट? दिस इज गुडविल एंट्री. नाउ बाय ये एंट्री करेंगे हम लोग प्रॉफिट की, जो B को क्रेडिट करना है. राइट? सो बाय A's कैपिटल 6,000 हमने जो है वो B को क्रेडिट कर दिया. राइट? देन अब हमें क्या करना है? B को क्रेडिट किया है तो A से लेना भी तो पड़ेगा. तो टू B's कैपिटल अकाउंट हमने A से 6,000 उसके अकाउंट में से माइनस कर दिया. राइट? अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं दोनों साइड्स को. टोटल 1,59,000 एंड 96,000. यहाँ पे आपका बैलेंस कैरिड ऑन 1,59,000 माइनस 6,000. दिस कम्स टू 1,53,000. आई होप उन लोगों को सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या किया है. सबसे पहले बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया. देन ये जो एंट्रीज थी आपकी, जहाँ पे आपको पार्टनर्स दिख रहे हैं, हमने वहाँ पे उन पार्टनर्स की जो है अगर क्रेडिट करना है तो हमने बाई साइड में दिखाया, अगर उसे लेना है तो हमने उसको डेबिट साइड में दिखा दिया. राइट? अब 96,000 है आपका यहाँ पे, माइनस 9,000 कितना आ गया आपका? 87,000. तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है. इसको हम क्लोज कर देते हैं. 1,59,000 and 96,000. So this is all in this question. इसको एक बार रिवाइज करो. अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछो. आई एम गिविंग यू 2 minutes to revise this question so that we can proceed further with our next topic. Right? Now children, we will start with a new topic from this chapter, changing profit sharing ratio, treatment of reserve and losses appearing in balance sheet. See, अभी जो है हमने क्या किया? सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, न्यू रेशो, हमने वो देखा कैसे कैलकुलेट करते हैं. राइट? अभी उसके बाद हमने नेक्स्ट किया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की. गुडविल को कैसे रिकॉर्ड करना है बुक्स के अंदर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड लॉसेस. मीन्स जो रिजर्व्स एंड लॉसेस हैं, अगर रेशो चेंज हो रही है डेफिनेटली उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा. एक चीज़ तुमको याद रखनी है, बैलेंस शीट में जो भी आइटम आपकी जो प्रॉफिट में से जो निकाली हुई है, लाइक जो रिजर्व्स हैं, एज यू नो जनरल रिजर्व्स क्या होते हैं? जनरल रिजर्व दे आर क्रिएटेड बाय द फर्म आउट ऑफ द पास्ट ईयर्स प्रॉफिट. आई एम रिपीटिंग, जनरल रिजर्व्स, रिजर्व की मैं बात कर रही हूँ. जनरल रिजर्व्स दे आर क्रिएटेड बाय द फर्म आउट ऑफ द पास्ट ईयर्स प्रॉफिट. राइट? तो जो चीज़ हमने प्रॉफिट में से निकाली है, या अगर बैलेंस शीट में कोई हमें
अगर हमें बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ बैलेंस दिया हुआ है, मींस एसेट साइड में, सॉरी एसेट साइड में अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया है, दैट इज लॉस फॉर द फर्म, राइट। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, दैट इज प्रॉफिट फॉर द फर्म, राइट। सो आपको जो भी चीज प्रॉफिट में से निकाली है या उसका डायरेक्ट लिंक है प्रॉफिट से, आपको उसको सेटल करना है एज पर दी क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आपको उसको जो है ट्रीट करना पड़ेगा। अभी जो हम इस क्लास में कर रहे हैं, हम ये करेंगे कि जनरल रिजर्व जब रेशियो चेंज होती है तो जनरल रिजर्व और वर्कमैन कॉम्पनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस को हम कैसे ट्रीट करेंगे, राइट नाउ। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं सबसे पहले जनरल रिजर्व की बात करते हैं। मैंने एक एग्जांपल रेडी किया है, आप देखो एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे। बैलेंस शीट आपको दी हुई है एज ऑन 31st March 2020। पार्टनर्स कैपिटल आर 4 लाख रुपीज, एस 3 लाख रुपीज, टोटल कम्स टू 7 लाख रुपीज। जर्नल रिजर्व 3 लाख रुपीज। जर्नल रिजर्व मैंने क्या बताया, इट इज क्रिएटेड बाय द फर्म आउट ऑफ द पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। जो हमने पास्ट में जो प्रॉफिट अर्न किया उसमें से हमने कुछ पार्ट रिजर्व में निकाल के रख दिया, जर्नल रिजर्व, राइट। सो दैट इज जर्नल रिजर्व। और वी कैन से जर्नल रिजर्व इज ऑल्सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, राइट। सो यहाँ पे जर्नल रिजर्व इज 3 लाख रुपीज, लाइबिलिटीज 20 लाख रुपीज, तो टोटल कम्स टू 30 लाख रुपीज एंड एसेट साइड में 30 लाख की आपको वैल्यू दी हुई है। अब हम इस एग्जांपल से क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि जनरल रिजर्व क्या है, क्या, राइट। जनरल रिजर्व क्या है और उसका जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज होती है तो उसके ऊपर उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, करेक्ट। एक हम लोग क्या करते हैं, रफ जो है प्रॉफिट एंड लॉस एक एजम्पशन के बेसिस पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड, राइट। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, राइट, ग्रॉस प्रॉफिट आप एज्यूम कर लो 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज, राइट। एंड कुछ भी एक्सपेंस ले लेते हैं हम, टू सैलरी एंड वेजेस, कितना ले लें, 1 लाख रुपीज ले लेते हैं, चलो, राइट। तो हमने 1 लाख रुपीज सैलरी एंड वेजेस ले लिया। नेट प्रॉफिट कितना आया, 2, बैलेंस कितना है 8 लाख माइनस 1 लाख, सो net profit comes to 7 लाख रुपीज, राइट। ये हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो 8 लाख। अब मुझे ये बताओ बात, ये जो 7 लाख रुपीज है, ये जो आपका 7 लाख रुपीज है, ये 7 लाख रुपीज ये क्या होगा, ये किसके पास जाएगा? यस, ऑब्वियसली ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 7 लाख रुपीज जो है, जो उनकी रेशो है, रेशो आपकी है 3:2, ये इनकी ओल्ड रेशो है 3:2, और फ्यूचर रेशो जो उनकी होगी इक्वल 1:1। सो जो ये 7 लाख रुपीज है, ये 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 7 लाख रुपीज, 7 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, दिस कम्स टू 4,20,000, राइट। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ 4,20,000। ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा आर को, और एस को कितना मिलेगा, एस को मिलेगा 4,20,000, आपका बचा पीछे 2,80,000, 2,80,000। आई होप बोर्ड इज विजिबल टू एवरीवन, राइट। जब प्रॉफिट जो है, जो फर्म ने सारे एक्सपेंसेस अपने सेटल कर दिए, उसके बाद जो बचा नेट प्रॉफिट, अगर वो पूरा का पूरा 7 लाख पार्टनर्स लेके चले जाते हैं, तो फ्यूचर में अगर फर्म को कुछ एक्सपेंशन करना है, राइट, उनको वो पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, उसके पास तो कुछ नहीं बचा। आप व्हेन यू टॉक अबाउट रिलायंस कंपनी और टाटा बिरला, ये क्या करते हैं, ये क्या सारा का सारा प्रॉफिट अपने घर ले जाते हैं? नो, ये क्या करते हैं, कुछ पैसा जो है रिजर्व में डाल देते हैं, राइट। अलग अलग रिजर्व होते हैं, उसके अंदर पैसा डाल देते हैं, सो दैट इन फ्यूचर इफ दे वांट टू एक्सपैंड और दे वांट टू डू एक्सपेंशन, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना है या कुछ ब्रांच खोलना है या कुछ और कुछ करना है, उसमें वो पैसा वो लोग यूज करते हैं, राइट। सो फर्म क्या करती है, अगर पूरा का पूरा पैसा कभी भी पार्टनर्स को नहीं देती, कुछ उसका पार्ट जो है वो रिजर्व में रख लेती है, राइट। दैट इज कॉल्ड जर्नल रिजर्व, कि आप उसको कहीं भी यूज करो। जर्नल का मतलब क्या हुआ, कहीं भी उसको यूज करो, तो दैट इज जर्नल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो फर्म क्या करेगी, यहाँ पे फर्म जो 7 लाख जो है, 7 लाख पूरा नहीं देगी, राइट।
फर्म जो है 7 लाख पूरा नहीं देगी। फर्म क्या करेगी, मैं इसको यहाँ से भी रब कर रही हूँ, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए, राइट। तो फर्म क्या करेगी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल फर्म बोलती है, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, 3 लाख रुपीज हम रिजर्व में डाल देते हैं। फर्म ने बोला ठीक है 3 लाख रुपीज रिजर्व में डाल देते हैं, बाकी जो बचा 4 लाख रुपीज, 7 लाख में से 3 लाख तो रिजर्व में चला गया, राइट। तो फर्म ने क्या किया, 4 लाख जो है वो डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स के बीच में कर देगी, तो ये आपका 4 लाख हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि जनरल रिजर्व जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा आफ्टर द चेंज इन द रेशो, राइट। बट जनरल रिजर्व का कंसेप्ट क्या है, कहाँ से आया, वो पहले समझना जरूरी है, राइट। तो जनरल रिजर्व हमने क्या बोला, प्रॉफिट का कुछ पार्ट हमने जो है स्टोर करके रख दिया, रिजर्व करके रख दिया फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। ओके, आई होप यहाँ तक तुमको समझ आ गया कि रिजर्व कैसे आया। अब जो है रेशो चेंज हुई है, राइट। रेशो पहले जो थी पास्ट में रेशो कितनी थी, 3:2। ये दो पार्टनर्स है हमारे, ठीक है। कौन है आपके, R:S। ये पास्ट की रेशो बन गई 3:2। चेंजेस कब आए आपके, ऑन 1 अप्रैल 2020। इसके बाद की जो रेशो है दैट इज R और S के बीच में जो रेशो बनी दैट इज इक्वल, मींस 1:1। जो जनरल रिजर्व है, व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल रिजर्व, हमने अगेन आई एम रिपीटिंग, जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स, मींस जिसमें R एंड S ने जो एफर्ट्स डाले होंगे वो डाले होंगे 3:2 के रेशो में, जिसमें से थर्ड पार्ट जो है, 3 पार्ट जो है वो किसका है, R का है, एंड 2 पार्ट किसके हैं, वो S के हैं। बट फ्यूचर में जब रेशो चेंज होगी, रेशो क्या बन जाएगी, 1:1। तो जो जनरल रिजर्व है वो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो किसको नुकसान हुआ, बैक एंड में आर के माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा होगा, एफर्ट मैंने डाले, बट फ्यूचर में जब रेशो चेंज हो रही है तो मुझे इक्वल शेयर करना पड़ेगा एस के साथ, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, उस डिस्प्यूट को अवॉइड करना है, उन कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका इफेक्ट थ्रू जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। अगेन हम यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, करेक्ट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जनरल रिजर्व है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। देखो एक होगी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री, एक होगी आपकी जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे पूरा, उसकी एंट्री पास करोगे। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग लर्न करेंगे कि जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वेदर इट इज जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, इनको आप एंट्री के थ्रू कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट। और एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी मींस गेनिंग टू सेक्रीफाइस, वो हम आगे की क्लासेस में करेंगे। पहले आज हम समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैसे होता है, करेक्ट। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट करो तो आपको अंडरस्टैंडिंग है कि क्या करना है, बट इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दिस जनरल रिजर्व, आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है, राइट। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर प्रॉफिट में कोई चीज निकली है, प्रॉफिट में से, या प्रॉफिट का आपको बैलेंस शीट के अंदर कोई बैलेंस दिया हुआ है इधर ऑन लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, आपको उसको सेटल करना पड़ेगा टू अवॉइड फ्यूचर कन्फ्लिक्ट्स अमंग दी पार्टनर्स, अदरवाइज पार्टनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे और प्रॉब्लम आएगी, राइट। तो जनरल रिजर्व यहाँ पे आपका 3 लाख, आप देखो इसको समझो कि हम कौन से डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं। 3 लाख आपका जनरल रिजर्व है, राइट। अगर हम 3 लाख को यहाँ पे पहले देखते हैं, 3 लाख जो है हमारा, आर की बात कर रहे हैं, 3 लाख जो है अपॉन 3/5 करते हैं तो आपका आता है 1,80,000, ठीक है। उसका बनता कितना है, 1,80,000 ओल्ड रेशो में, जहाँ पे उसने 3 पार्ट्स उसका जो है वो डिजर्व करता है। और अगर हम इसको इक्वल कर देते हैं आर को आफ्टर न्यू रेशो, तो 3 लाख को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ इंटू 1/2 की रेशो में, तो देखो इसका आ गया 1,50,000 जो कि लेस है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो आर को कहीं ना कहीं माइंड में ये रहेगा कि मुझे कम मिला है, जो मेरे जो एफर्ट्स थे, राइट, उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया है, आगे जो रेशो चेंज हुई है उसमें मुझे एस के साथ शेयर करना पड़ रहा है। तो इसको सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें रिजर्व दिया हुआ जनरल रिजर्व उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखो जनरल रिजर्व आपको लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, मींस क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। अब इसको खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट साइड में लाना पड़ेगा। एंट्री जब हम पास करेंगे, कोई चीज अगर आपको खत्म करनी है तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको डेबिट करके खत्म करोगे। आपको याद है ना, जब लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज होती हैं तो आप उसे क्रेडिट करते हो, और जब आपके एसेट्स आपके जब इंक्रीज होते हैं तो आप उसको डेबिट करते हो।
और जब आप खत्म करना है तो आप उसको उल्टा करोगे, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इसको खत्म करना है, मुझे जनरल रिजर्व को यहाँ से खत्म करना है। तो जो क्रेडिट बैलेंस है मुझे उसको अब डेबिट में लाना पड़ेगा। तो मतलब मेरी जो एंट्री पास होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कौन है हमारे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, सॉरी यहाँ डेबिट नहीं आएगा, ठीक है। ये आपकी एंट्री पास होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट, राइट। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं हम लोग। एक बार देख लो, क्वेश्चन समझ लो, अगर तुम्हें लग रहा है कि इसके अंदर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ, फिर इसको आगे दोबारा डिस्कस करेंगे। पर क्वेश्चन दोबारा से समझ लो। बैलेंस शीट आपको मैंने रख दी है यहाँ पे, उसके अंदर पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन, देन लायबिलिटीज आपको दी हुई है, जनरल रिजर्व 3 लाख दिया हुआ है, एसेट आपको 30,000 दिया हुआ है, राइट। नाउ पार्टनर्स वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1st April 2020. Partners decided to share future profits equally. Pass journal entry for treatment of गुडविल। यहाँ पे एक हमने एजम्पशन के बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने रेडी कर लिया है। देन हमने क्या किया, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि अगर हम 3:2 में डिवाइड करते तो यहाँ पे 1,80,000 बनता, और अगर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे जनरल रिजर्व को, ये सेम आगे चलेगा, तो आर को 1,50,000 इसका शेयर बन रहा है। तो हमें ये सिचुएशन अवॉइड करनी है, हम जनरल रिजर्व को पूरा का पूरा खत्म कर रहे हैं। तो अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 3 लाख रुपीज आ गया यहाँ पे, राइट। हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1 लाख ओल्ड रेशो में, ठीक है, ओल्ड रेशो में जाएगा ये 1 लाख। आई होप बोर्ड इज क्लियर। 1,80,000, 1,20,000, राइट। सो बीइंग जनरल रिजर्व distributed among old partners, सी जनरल रिजर्व जो है कभी भी जो है बाई चांस फॉर एग्जांपल कोई नया पार्टनर आता है उसको नहीं मिलेगा, उसका कोई उसमें जो एफर्ट नहीं है। तो जनरल रिजर्व जो होता है हमेशा ओल्ड रेशियो में, जो भी हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो ओल्ड रेशियो में होगा, जो भी बैलेंस शीट के आइटम जो है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट अगर कर रहे हैं वो ओल्ड रेशियो में होगा और ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ही होगा, right? So general reserve distributed among old partners in the old ratio, right? So children, I hope this example is clear. अगर कोई doubt है you can ask me, and with this we will end today's class, and in the next class we will do more examples and we will do few questions from the book. So till then you have to practice the questions, and in case you find any problem you can message me anytime, and take care. Till then, spread love and peace.